कई एक मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर सेम टॉपिक हो तो, अगर दूसरा टॉपिक हो तब भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस साल के वीडियोस कब अपलोड हो रहे हैं हम लोग मिस्टर मजहर से पूछ लेंगे और फिर वी विल पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू यू। सर एमएमटीटीसी एएमयू पे सिर्फ 3 लेक्चर अवेलेबल है, उसमें से आईसीटी का सिर्फ एक ही लेक्चर है, लास्ट ईयर वाला। सिर्फ एक बट आई वाज लेक्चर अवेलेबल है। सीइंग हाँ एक कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनका देखा मैंने, कई लोगों के देखे। चैनल का because नाम या last year लिंक शेयर करेंगे। in the last year also there were 2 FIPs. लास्ट ईयर भी 2 FIP हुए, इस साल भी 2 FIP है। This one is the first one in this academic year. Next is sometimes in January में दूसरा FIP प्रोग्राम। वैसे आपको बता दूं अपनी मन की बात, 4 हफ्ता थोड़ा लंबा हो गया। 4 हफ्ते की जगह होना चाहिए था 2 बार कोर्स करें, 15 डेज का, यानी 2 वीक्स एंड 2 वीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। you would have enjoyed if it was in the offline mode, क्योंकि उसमें अलीगढ़ से आगरा नजदीक है ना, आगरा को ट्रिप भी जाता है। यूनिवर्सिटी टेक्स द पार्टिसिपेंट्स टू आगरा, तो होम स्टे भी कराते हैं। like in the UK and USA, participants will be asked to visit local hosts, teachers, उनका कल्चर जानेंगे आप, because many of you may not have interacted with Muslims or Hindus. So you, by visiting their homes, you can also have an idea about how they live, what they eat, what are their mannerisms, how are their houses. It's a kind of knowing about the other, so that peace and harmony prevails in the society. Friends, without wasting much time, let me welcome our resource person of this morning, Dr. Siraz Kirmani. He is Associate Professor in the Department of Electrical Engineering, Aligarh Muslim University. He will be, I think, mostly speaking about sustainable development in the context of energy, that is sustainable energy. That is one of the goals of SDGs, Sustainable Development Goals. There are 17 Sustainable Development Goals. Our course tries to fulfill one, that is quality education. Quality education is one of the 17 goals. No hunger, gender equality, there are 17 such goals. And we are having today Dr. Siraz Kirmani Sahab, who will be speaking on probably solar energy, because his title I am not able to understand. Home-based solar system. Very interesting. Seems to be very interesting. सिराज किरमानी साहब, आप हमको देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं। Switch on your camera so that our participants can also see you on the screen. हाँ, अब आप नजर आ रहे हैं। I think I am now visible. हाँ, now you are visible. पहले सिर्फ आपका पीपीटी नजर आ रहा था। जब तक पीपीटी के ओनर नजर नहीं आएंगे, हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, I was just listening to you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। No, good morning. जब हमने आपका अस्सलाम वालेकुम सर चेक किया, checking his CV, Dr. Siraz Kirmani also worked earlier in Jamia Millia Islamia. I think it is the same Siraz Kirmani Sahab. Yeah, I have been there for 9 years. Oh, 9 years, long period. Yeah. Because I was there for 2 years.
I was holding a professorial chair for 2 years in Okay. Jamia Millia Islamia. Friends, now I hand over the floor to Dr. Shiraz Kirmani Sahab, who will enlighten you about how to have the green energy or sustainable energy. Yeah, Thank you, Shiraz Sahab. thank you very much. And first of all, I would like to thank the organizers of the event that they have given me an opportunity to speak on sustainable development. And I welcome all the participants who had joined this program from across the country, from north to south and from east to west. So, as the name of the lecture suggests, that we have to work on sustainable development. So, our target, our means the target of you can see as you can see in the topic, our target as a teacher or as a student should be that we should start the sustainable development from our home. हम जो शुरुआत करें वो अपने आप से करें. In this context, as you are very well aware that in regard to the sustainable development, the government of India is focusing on reducing the carbon emissions and focusing on the on installation of green and sustainable energy. In this context, the government is hugely focusing on installation of solar photovoltaic system on our rooftop. All of you must have heard a slogan that we have to become Atmanirbhar. So presently we are means self-dependent. This means we have to become self-dependent. Presently, all of us, or you can say not presently, but 15 years, if you go 15 years back, or 10 years back, or you can say sometimes back, not exact, if you are not quoting the exact time frame, then sometimes back, or even today, you can say most of us. Why I am saying few years back, now people have become you can say self or Atmanirbhar in the context of producing their own energy needs. In the same context, the government of India way back in 2009 started the Jawaharlal Nehru National Solar Mission. 2009 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन. उसका टारगेट था, व्हाट वाज द टारगेट? इफ यू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक मीन्स 2009 तक, that the country was dependent on generating its energy needs, electrical energy needs or the energy needs from thermal power plants that you can see on the very top. Right now it is around 60%. उस वक्त में कितना था? It was 80% in 2009. Roughly 78 to 80% was there. So the government started thinking on this line, and it started the Jawaharlal Nehru National Solar Mission with a aim to generate power from solar energy sources. At that time, it was almost, you can say, the power generation from solar energy was almost 2%, only 2%. इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई जब से लेके अब तक. Now it has reached to around 26%. And in the last 10 to 11 years, it has increased many folds. Total जो हमारी पावर जनरेशन है इंडिया की, क्योंकि इससे चाहे यू आर डूइंग दिस ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स,
आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आइदर योर बैकग्राउंड इज मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, कोई भी आपकी बैकग्राउंड है, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर इंसान यूज़ करता है. हर कोई आज की डेट में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कम से कम इस देश के अंदर, हो सकता है किसी अफ्रीका के किसी मुल्क में हो जहाँ पर अभी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ ना करता हो. ऑल ऑफ अस यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरी चीज़ ये है, फर्स्ट थिंग इज दैट एवरीबडी इज डायरेक्टली यूजिंग दिस टाइप ऑफ रिसोर्स. दूसरी चीज़ ये है कि एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसर्न, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो सोलर एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर, क्योंकि सोलर सन जो है वो हर एक के घर पर आता है सुबह को, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर पर सुबह को सन ना आता हो. तो हर इंसान, चाहे वो टीचर है इसमें या स्टूडेंट है या सोसाइटी का कोई भी मालदार से मालदार आदमी या गरीब से गरीब आदमी, हर इसके अंदर हर बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाने के लिए. क्यों? ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो. अभी हम देख रहे हैं दैट कहीं पर भी, चाहे आप पहाड़ों पर रहते हो, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, कहीं पर भी रहते हो, यू कैन सी दैट गर्मियों के अंदर दी टेम्परेचर हैज़, जो पहले टेम्परेचर था जब व्हेन वी वर दी किड्स, आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले, अब वो टेम्परेचर नहीं रहा. बारिश जैसी जब होती थी अब उस टाइप से बारिश नहीं होती है. और विंटर का जो पैटर्न था इट हैज आल्सो चेंज. सो देयर इज ए क्लाइमेट चेंज ऑल अराउंड ऑफ अस. तो देयर आर वेरियस थ्योरीज. अब इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं कि क्लाइमेट चेंज इसलिए हुआ तो बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज ऑफ कार्बन इमिशंस, दिस एंड दैट. इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी सोसाइटी को सस्टेनेबल बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? कि द गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स एट आवर रूफटॉप. हम सब लोग घर में रहते हैं, दिस इज वेरी मच क्लियर, चाहे कोई कहीं पर भी रह रहा हो. और हमारी लोकेशन ऐसी है इंडिया की, यूरोप में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ सन बहुत कम आता है साल भर में. बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ दिन बहुत छोटा होता है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. पूरे कंट्री के अंदर हमारे पास रफली हर लोकेशन पर मोर देन 300 सनी डेज अवेलेबल हैं. तो जो ये कार्बन इमिशंस हो रहे हैं, हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अपने इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने छत पर सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगाकर. इसके अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग सब्सिडी. मेरे ख्याल से एक तरफ से लेक्चर हो रहा है. आपके यहाँ जो कौन बताएगा कि मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है? एनीबडी? 5 से 6 हजार. 5 से 6 हजार. सर 3000 30 से 3200 के बीच में आ रहा है. 5 to 6000. हाँ, मैं समझता हूँ जो लोग भी एसी यूज करते हैं ना, उनके किसी के यहाँ भी 3000 रुपये का बिल नहीं आता होगा. जो लोग उनके यहाँ 7-8 हजार रुपये का बिल आता है मिनिमम. और हो सकता है आप लोग ऐसी लोकेशन पर रहते हो जहाँ गर्मी कम पड़ती है, बट हमारी लोकेशन पर लोग रहते हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास, वहाँ साल में दरभंगा में रहते हैं सर. हाँ, वहाँ पे
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर हम देहरादून रहते हैं, हमारा तो 1000 के करीब आता, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत कम होती है। इसीलिए देहरादून में रहते हैं ना, अब इसीलिए हम लोग तो यहाँ गर्मी में रहते हैं बहुत। इधर बिहार में है ना। यहाँ तो अभी भी मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इसीलिए अच्छा है। तो हाँ इसीलिए तो देहरादून लोग घूमने जाते हैं। यस सर। जी। तो हमारे यहाँ 5 महीने गर्मी पड़ती है ऑलमोस्ट, और गर्मी के अंदर मिनिमम बिल 7-8 हज़ार रुपये आता है जो लोग एसी यूज करते हैं। जो लोग कूलर यूज करते हैं उनके यहाँ 4,000 रुपये के आसपास आता है, और जो लोग पंखा यूज करते होंगे अपने घर में, मतलब एक आई एम टॉकिंग ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली, जो लोग पंखा यूज करते हैं उनके यहाँ 1,500 रुपये करीब का बिल आता होगा। तो इवन आपके यहाँ अगर 1,200 रुपये का भी बिल आ रहा है, मिनिमम 1,000 रुपये का बिल आ रहा है, जो लोग ठंडी लोकेशन पर रह रहे हैं, कोई हो सकता है कश्मीर से हो इसके अंदर, और कुछ लोग जो हैं वो जैसे देहरादून से हैं या हिमाचल से हो कुछ लोग, तो वहाँ पर जो है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बिल कम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने इस बिल को कम कर सकते हैं। अच्छा, जिसके यहाँ 5,000 रुपये का बिल आ रहा है, तो साल भर में रफली 60,000 का बिल हो गया कि नहीं हुआ भाई? अरे हाँ, हो गया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें प्रमोट कर रही है कि हम लोग बिजली पैदा करने के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएं, और अपने रूफ टॉप पर, हर एक के यहाँ रूफ टॉप है, जिसका भी घर है उसके यहाँ रूफ टॉप है। अगर कोई अपार्टमेंट में रह रहा है तो उसके यहाँ भी रूफ टॉप तो है ही है, एक कॉमन रूफ टॉप होती है। नहीं भी है तो वॉल है, वॉल माउंटेड भी होते हैं पैनल्स। तो अगर हम 3 किलोवाट का हमारे यहाँ कनेक्शन है, होम कनेक्शन नॉर्मली 3 किलोवाट का होता है आजकल, तो 3 किलोवाट का अगर हमारे यहाँ कनेक्शन है, तो रफली जो सोलर सिस्टम लगेगा हमारे यहाँ छत पर, वो 50,000 रुपीज पर किलोवाट लगता है। तो कितने का लगेगा 3 किलोवाट का? 1.5 लाख। 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख के अंदर 70,000 सब्सिडी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कितनी देती है? 70,000। और 38,000 सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो कितनी सब्सिडी हो गई? 1,08,000। 1,08,000। सिस्टम कितने का लग रहा है? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। आपको कितने पैसे देने पड़े? अमाउंट बचा सर, 42,000 ओनली फॉर 42,000। और बिल Yes, आ रहा है 4,000 रुपए का, 5,000, 4,000 रुपए का मान लेते हैं बिल। तो 5 का एवरेज मंथ है सर, 60 हो रहा है सर। 42 के करीब 12,000 तक भी बचत में है सर। अब जिसका बिल जो है वो मान लीजिए 4,000 रुपए का भी आ रहा है, तो Yes, उसको sir. पे बैक कितने दिन में हो जाएगा? 42,000 Yes, sir. रुपए। यस सर। बताइए। 11 महीने में 11 महीने 11 महीने में, या 1 साल लगा लीजिए, सर्दियों के बिल कम आता है। तो Yes, रफली एक साल में रफली हो सकता है किसी के 14 महीने लगे, किसी के 11 महीने लगे, किसी के 16 लगे, किसी के 10 महीने लग जाए। तो रफली एक साल में you will be able to get back your amount whatever you have invested, and अब उसके बाद वो आपको फायदा देना शुरू करेगा। ठीक है ना? तो एक 3 किलोवाट का सिस्टम कितने यूनिट जनरेट कर देता है? 1 किलोवाट का सिस्टम रफली 5 यूनिट जनरेट करता है एक दिन में। कितने करता है? 5 यूनिट। 3 किलोवाट का सिस्टम 15 यूनिट जनरेट करेगा। तो अगर 15 यूनिट जनरेट होंगे, रफली इन अ मंथ यू विल बी जनरेटिंग 450 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो सिस्टम है ये ग्रिड कनेक्ट, यानी ग्रिड का कनेक्शन मतलब अभी क्या है, अभी आप पावर ले रहे हैं सरकार से। जब आप ये सिस्टम लगवा लेंगे, सोलर सिस्टम अपने छत पर, तो आप पावर लेंगे भी। और जब ऐसा कोई टाइम है, फॉर एग्जांपल आप दिन में 2 लोग हैं घर में, 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, हस्बैंड भी चले गए जॉब पर, वाइफ भी जॉब पर चले गई, बच्चे भी अपने स्कूल कॉलेज चले गए। अब नाउ कंजम्पशन इज ऑलमोस्ट 0 इन द डे, या रेफ्रिजरेटर चल रहा है बस और थोड़ा बहुत लोड चल रहा है। तो अब आप उसको अगर यूज़ नहीं कर रहे दिन में, क्वेश्चन ये आता है कि हम दिन में यूज़ नहीं कर रहे, दिन में यूज़ नहीं करेंगे, तब आपका सिस्टम कनेक्टेड है ग्रिड से, तो आप वो जो दिन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही, यूनिट जनरेट हो रहे हैं, यू विल बी सेलिंग
those units to the government. अब आपने रात में कंज्यूम किए 15 यूनिट और दिन में आपने 15 यूनिट जनरेट करे, तो अब आपका बिल एक दिन का कितना आएगा बताओ भाई? Zero. जीरो हो जाएगा, क्योंकि दिन में आपने गवर्नमेंट को बेच दिए और रात में आपने गवर्नमेंट को ले दिए. So this way you will be able to you can say contribute towards sustainable development. Is it everybody, each and every one of us can think of installing such a system? इसीलिए क्या हो रहा है कि पहले जहां कंट्री के अंदर 3% जनरेशन था सोलर से, आज की तारीख में रफली 27% हो चुका है. ये जो डेटा अभी आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है ना, इसमें आप देख सकते हैं ये डेटा थोड़ा पुराना है, ये 1 साल पुराना डेटा है. तो लेकिन फिर भी इससे आप यहाँ पर जो रिन्यूएबल से जनरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ 23.5% हो रहा है. और इसके अंदर भी जो सोलर का जो है वो 40% है. ये डेटा थोड़ा पुराना है. तो अब जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो हो रहा है जनरेशन वो ज़्यादा हो गया. सो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिए 2024 का ये डेटा है. तो 2024 में जो कंट्रीब्यूशन था वो इतना जो आपकी स्क्रीन पर है, अब ये जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे. सो दिस वे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हमारी सोसाइटी जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा शहर जहाँ पर हम रहते हैं वो, और हमारा मुल्क और द प्लैनेट एज ए होल विल बिकम सस्टेनेबल, और उनके लिए रहना आसान होगा. वरना अगर क्या हुआ है पिछले 50 सालों में, रफली 50 सालों में इतनी तेज़ी से लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया और उसको इतना बेदर्दी से यूज़ किया कि यू कैन सी एवरीवेयर द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. पहले कहाँ था ग्राउंड वाटर, आज कहाँ पर है, आई डोंट नो किसी के एरिया में, बट यू कैन योरसेल्फ रियलाइज. इसी तरीके से पॉल्यूशन लेवल, हम जहाँ पर भी रहते हैं और उसके अलावा मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ सांस लेना मुश्किल है. उसके बाद क्लाइमेट चेंज, बारिश कभी सर्दियों में हो जाती है जो खेती को नुकसान पहुँचाती है, जिसकी वजह से फिर महंगाई बढ़ती है. या पहाड़ी इलाकों में जाएं, वहाँ पर जो है वो बादल फट जाते हैं, लोग की डेथ हो जाती है. हर तरफ जो है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर चेंजिंग. सो बाई कंट्रीब्यूटिंग, थोड़ा थोड़ा हम एक एक बूंद कंट्रीब्यूट करेंगे, हर बंदा थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, देन दिस विल लीड टू यू कैन से slow and gradual change, but at the end of you can say 10 years or 20 years the change will be visible, and our society and our place where we live, our country and the planet as a whole will be our future generations will be able to live more easily. इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो with this installation of solar system या एज ए होल जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग. सर, ये जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस बताए गए और गवर्नमेंट सब्सिडी बताई गई, या क्या ये फिक्स है या ये वेरी करता है? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो तो फिक्स है. अगर आप 3 किलोवाट का लगवाएंगे तो 70,000 देंगे, और 2 किलोवाट का लगवाएंगे तो उससे कुछ कम है, 1 किलोवाट का लगवाएंगे तो उससे थोड़ा कम है. लेकिन मैक्सिमम जो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है और जो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए देती है वो 3 किलोवाट पर देती है. उससे ज़्यादा आप 4 लगवाएं, 5 लगवाएं, 6 लगवाएं, मैक्सिमम सब्सिडी 3 किलोवाट पर देगी. और ये जो 38,000 मैंने सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट वाली बताई, ये भी मैक्सिमम 3 किलोवाट पर ही मिलती है. लेकिन बट ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है. आई एम टेलिंग अबाउट
our state where we are staying in Uttar Pradesh, but the policy is there in every state. The amount may vary slightly, but there is a subsidy. थोड़ा सा सर वेरी करता होगा ना, मैक्सिमम तो नहीं थोड़ा करना सा वेरी करता होगा. जो we are talking of, let us say 3 kilowatt system. It is 70,000 subsidy. Central government here, that means same for all of us. Either we stay in north or east or west or south, wherever. But the state government subsidy keeps on changing from state to state. You can सर see एक the क्वेश्चन data था of सर the. कि एक घर में जो है मैक्सिमम सोलर प्लांट कितना लगा सकते हैं हम, उसके लिए आप लगा मैक्सिमम सकते हैं। गवर्नमेंट जो है कितना सब्सिडी दे सकती है? अगर हम 3 3 किलोवाट लगाते का हैं तो सब्सिडी क्या देती है मैक्सिमम. क्या सर उसका कुछ क्राइटेरिया भी है क्या? हाँ, इतना ठीक है, सब्सिडी ठीक है। देती है. मैक्सिमम 3 किलोवाट की सब्सिडी देगी. और जैसे कि इतने मैं पर सब्सिडी maximum- देगी. मैं बता रहा हूँ वही मैं, लेट मी कंप्लीट. ये सर मैक्सिमम 3 किलोवाट की सब्सिडी देगी और इतना सब्सिडी देगी जितना आपके मीटर की रेटिंग है एट प्रेजेंट. आपकी मीटर की रेटिंग 2 किलोवाट की है तो गवर्नमेंट आपको 2 किलोवाट पर ही सब्सिडी देगी. अगर आपकी 1 किलोवाट की मीटर की रेटिंग है तो आपको 1 किलोवाट पर सब्सिडी देगी. 3 किलोवाट की है तो 3 किलोवाट देगी. 4 किलोवाट है तो सब्सिडी 3 किलोवाट पर ही देगी. 3 किलोवाट से ज्यादा सब्सिडी नहीं देगी. कितना रेजिडेंशियल उसका के रेंज है उसी के अकॉर्डिंग देती है जी. यस है. Sir, I have a technical question. I am Dr. Arun Mitra. Sir, what the You are from which amount of background? I am physics, Department of Physics, City College. Okay. 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 I have just a technical question. One, that what the amount of electricity we generate in the daylight? Can we use it in the evening or at night? Is it possible? That's what they actually. दो तरीके के सिस्टम होते हैं. एक तो ग्रिड कनेक्टेड होता है, एक ऑफ ग्रिड होता है. ठीक है. तो गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी दे रही है वो ग्रिड कनेक्टेड पर दे रही है. एक बात, अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं लेना चाह रहे, आप अपना सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, आप ग्रिड पे उसको नहीं देना चाह रहे पावर को, तो पहली चीज तो ये है आपको उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. लेकिन वो सिस्टम थोड़ा सा चीप लग सकता है. आपका जो सिस्टम आपका 1.5 लाख रुपए का लग रहा है वो थोड़ा सा चीप लग जाएगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से फिर सामान खरीद सकते हैं. यानी पैनल अभी तो क्या है कि फिक्स है गवर्नमेंट का कि इन कंपनीज के पैनल होंगे. तो अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो यही आपको सामान खरीदना है, ये उसने स्पेसिफाइड कर रखा है. ठीक है. तो लेकिन अब आप जो शाम में यूज करना चाह रहे हैं ग्रिड कनेक्टेड में, तो ये होता है कि आप जब यूज नहीं कर रहे, यू कैन शेयर योर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड, और जब आपको जरूरत है आप यूज करें तो बिल में से आपके माइनस हो जाएंगे. आपने 15 यूनिट जनरेट करे, 15 आप रात में खर्च करें तो आपको नेट बिल 0 का आएगा. लेकिन अगर आपका ग्रिड वाला आप नहीं यूज करना चाह रहे तो आपको बैटरी लगानी पड़ेगी स्टोरेज करने के लिए. आपको बैटरी में स्टोर करना पड़ेगा दिन में, और रात में आपको उसको बैटरी से यूज करना पड़ेगा. जैसे कि आपने इन्वर्टर बैटरी सेट शायद सभी के घर लगा हुआ हो, जैसे इन्वर्टर बैटरी सेट में हम लोग करते हैं इस टाइप से. आई थिंक. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Sir, मेरा question है. फर्स्ट टेल योर नेम एंड योर Life Sir, cycle. my name is my name is Shivali Vasist. या प्लीज वंस अगेन. Sir, my name is Solar Shivali Vasist. साइकिल एक और एक उसका एक कर. Sir, I'm Shivali Vasist. Sir, I am from Department of Commerce. Sir, my question is, sir, ये जो solar panels होते हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी जाती है? Yeah, very good question. The life span is around 25 to 30 years, as per the claimed by the manufacturers. The maintenance cost per month or per year is almost zero. Almost. मेंटेनेंस क्या है, आपको उस पर जो धूल आ जाती है ना वो आपको साफ करनी पड़ती है. तो उसके 2 तरीके हैं जो उसके ऊपर सफाई के. एक तो मैनुअल सफाई है जो आप खुद भी कर सकते हैं, या किसी को पर मंथ कुछ पैसे देकर करवा सकते हैं. अगर और वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में धूल कितनी है. ठीक है. और दूसरा एक सफाई मोटर लगाकर भी होती है. वो मोटर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ही लग जाता है. देन तो वो यू कैन से टाइमली जो है उसको
आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और टाइम भी जो है सफाई करता रहता है फिर। तो द मेंटेनेंस चार्जेस इज ऑलमोस्ट जीरो और यू कैन से वेरी स्मॉल। ओके, थैंक यू। सर अगर Any other जिसके यहाँ बारिश होती रहती है उनको तो इसका भी चार्जेस ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनके यहाँ जिनके बारिश होती रहती है उनके यहाँ पावर जनरेट कैसे, उनका सूरज भी तो नहीं निकलेगा ना ज्यादा। यहाँ पर कंपनसेशन देना पड़ेगा। कम है इसका मतलब कि प्लांट का यूज ही होता होगा ना ईस्टर्न साइड सर। ईस्टर्न साइड जैसे कि हो गया मेघालय सब में सर, इस सब का तो यूज नहीं के बराबर है सर। कहीं पर भी इंडिया में एक्चुअली इंडिया को जो है, जो हम लोगों से मतलब जो यानी सोलर पावर जनरेशन में के में जो है वो रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों ने 5 क्लाइमेटिक जोन्स में बताया है, ठीक है ना। तो कोई भी क्लाइमेटिक जोन ऐसी नहीं है जहां पर जो है वो रफली 260 या 280 से कम सनी डेज हों। सब चाहे वो मेघालय है या कोई भी है, बारिश होती होगी वहां पर ज्यादा, लेकिन सूरज भी निकलता है। सर बारिश खत्म होने के बाद एकदम से सूरज आ जाता है, ये नहीं कि बारिश के बाद। हाँ जी, पहाड़ी इलाकों में हम लोगों ने जो सोलर पावर जनरेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों ने वी हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू 5 क्लाइमेटिक जोन्स एंड देयर इज कोई ऐसी जोन नहीं है जहां पर 260 या 280 से कम सनी डेज हों। 320 330 भी सनी डेज हैं बहुत सारी लोकेशन पर, कि खाली 30 दिन ही सूरज नहीं निकलता है, लेकिन 260 तो सब जगह है। तो पावर जनरेट होती है सब जगह, सूरज भी निकलता है। थोड़ा कम ज्यादा का मैटर है, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, बहुत यानी जो फिजिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं, जो जिन्होंने सवाल पूछा था, इन लोगों को शायद पता हो पहले से कि जहां टेम्परेचर जहां बारिश होती है वहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वहां 25 के अराउंड रहता है। और जहां जिस लोकेशन पर हम हैं यहाँ 40 तक भी पहुंच जाता है, 42 तक भी, 45 तक भी कभी कभी पहुंच जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो एक जो यानी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इतनी ही ज़्यादा सोलर पावर जनरेशन होगी। ऑल्दो दिस इज ए मिसकंसेप्शन ओनली एंड दिस इज ए रॉन्ग नोशन। जो मैक्सिमम पावर जनरेट होती है वो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो जिस जगह पे बारिश होती है या जो ऐसी लोकेशन जैसी देहरादून है या हिमाचल है हमारे यहाँ नॉर्थ में, तो यहाँ पर पावर ज़्यादा जनरेट हो सकती है सोलर से इन कंपैरिजन टू प्लेन एरियाज। प्लेन से मतलब मैं आई एम टॉकिंग ऑफ यूपी एंड दिल्ली एंड हरियाणा, राजस्थान, इन जगह से ज़्यादा जनरेट हो सकती है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है 4-5 महीने में, अप्रैल से लेकर अगस्त तक। तो जहाँ टेम्परेचर कम है, जहाँ बारिश हो रही है, तो वहाँ पर भी हर जगह के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। वहाँ का एडवांटेज ये है कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच रहा है, तो वो 25 के अराउंड ही रहता है। तो उस टेम्परेचर पर पावर ज़्यादा जनरेट होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पावर जनरेट होनी कम हो जाती है सोलर से। ओके, तो हर उसके भी अपने एडवांटेजेस हैं। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर अजीजुर रहमान सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पे सोलर पैनल पे क्या कुछ ह्यूमिडिटी का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? डॉक्टर साहब आप कहाँ से ज्वाइन किए हुए हैं तो बताइए जरा। हेलो जी बताइए। जी सर। सर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द सोलर पैनल। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपने कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है? अलीगढ़ से, दिल्ली से, नहीं सर, से? शिबली कॉलेज से ज्वाइन किया मैंने, आजमगढ़। अच्छा, जी बताइए, क्वेश्चन बताइए अपना। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होता है इसमें सोलर पैनल पर। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे मतलब एरियाज हैं जहाँ पे ऑल द ईयर्स ह्यूमिडिटी वहाँ पे मेंटेन रहती है। जो जी सोलर रेडिएशन है ना, उसका जी
और उसका सारी ही चीजों का आउटपुट पर इफेक्ट पड़ता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर जी जी और जी जी जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, मगर सबसे ज्यादा जो जी इफेक्ट जी होता है आउटपुट वो टेम्परेचर से होता है, ह्यूमिडिटी से इतना नहीं होता। अच्छा 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 ऑल्दो इट इज इफेक्टेड, ऐसा हम ये नहीं जी कह जी सकते कि जी उसका इफेक्ट नहीं है। उसका कितना जी जी इफेक्ट जी होता जी है? आप हेलो किन बैकग्राउंड से हैं? कॉमर्स से हैं? किस चीज से हैं जी आप? हेलो सर। तो इफेक्ट होता है ह्यूमिडिटी का, हेलो अमाउंट सर। ऑफ रेनफॉल का। जी आवाज आ रही है, पूछिए। हेलो, मेरा एक लेकिन सवाल था। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट कम होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा होता है। सर मेरा एक सवाल था। हेलो जी सर। बताइए, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? पहले तो ये बताइए कहाँ से हैं, हेलो। क्या नाम है आपका? हेलो सर। जी डॉक्टर संजय कुमार, मैं तिरंगा मिथिला यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। तो मेरा एक सवाल था, यदि हम सोलर सिस्टम लगाते हैं, सोलर एनर्जी, तो फिर हमारे जैसे हम घर पे लगाते हैं तो हमारी बॉडी पर या हमारे उस जॉन में क्या उसका इफेक्ट पड़ता है या नहीं? बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है मेरा इससे। सवाल ये था कि उस लगाने से क्या हमारे हेल्थ कोई हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं, हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इससे कोई रेडिएशन नहीं निकलते हैं। वही समझना। ये तो जो सोलर रेडिएशन है ओके ना, ये तो उसी का यूज कर रहा है। और सोलर रेडिएशन तो आपकी बॉडी पर पड़ते ही है, सारे साल, सारी जिंदगी पड़ते हैं। जी और सोलर रेडिएशन तो कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट होता है इंसान की बॉडी पर, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। जी जी। सर अभी तक तो कोई न्यूज़ कहीं से नहीं मिली है कि किसी कोई हार्मफुल रिएक्शन होता है। वही तो मैं नहीं, तो ये तो सोलर रेडिएशन का यूज करता है ना, उससे जो जी जी सोलर जी जी रेडिएशन तो हमारी बॉडी के ऊपर जिंदगी भर पड़ते हैं। और हम हाँ चाहते हैं कि सोलर से तो विटामिन डी। एक्सपोज रहे, बल्कि जहाँ जिन इलाकों में सोलर एनर्जी कम है, यूरोप वगैरह में, जी वहाँ जी बीमारी ज्यादा होती है इन जी कंपैरिजन जी टू प्लेसेस वेयर सोलर रेडिएशन इज मोर। जहाँ पर ओके सोलर रेडिएशन ज्यादा मिलता है वहाँ बीमारी कम होती है, और जहाँ सोलर जी की जी रेडिएशन कम होता है वहाँ बीमारी ज्यादा होती है। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। This This is Dr. Abu Hassan Sheikh from City College, Kolkata. So first of all, Okay. it is a very nice session. From which background? You are from I'm social from science? commerce. I'm from Department of Commerce. Okay. And actually, my question was like, म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज रुक गई। हाँ You are sir. not audible. Now can you hear me, sir? Yeah, we can hear you. Yeah. What is the total cost? I mean to say for installation and for the solar panels. And another thing is, supposing if anybody is living in some kind of a apartments or let's say a flat system, so can there be use this kind of technology? And is the cost too much or it's I mean to say reasonable? That is my question. कॉस्ट तो मैंने बताई ना आपको, 1 किलोवाट का सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं, कंप्लीट सिस्टम। वी आर टॉकिंग ऑफ कंप्लीट सिस्टम, नॉट ऑफ पैनल्स ओनली। कंप्लीट सिस्टम मीन सोलर पैनल होंगे, उसके अंदर फ्रेम होगा जिस पर इंस्टॉल किया जाएगा। वो नॉर्मली दिस इज स्टील फ्रेम, और जो भी आपका जिस भी कंपनी से आपने कांटेक्ट किया है, नॉर्मली लोग स्टील का, आयरन का, इन सब चीज़ों का फ्रेम लगाते हैं। उसके अंदर एक इन्वर्टर होता है और एक कंट्रोल यूनिट होती है, तो ये सारी चीज़ें होती, वायरिंग होती है, अर्थिंग होती है, सबका हमने मिलाकर कॉस्ट बताई, रफली 50,000 रुपीज़ पर किलोवाट। ठीक है ना? Okay. Okay. और अगर आप सिर्फ यू आर टॉकिंग ऑफ ओनली पैनल्स, ओके, यू आर टॉकिंग ऑफ ओनली पैनल्स, तो खाली पैनल से तो कोई भी काम नहीं होगा। और पैनल की जो कॉस्ट है रफली 20 से लेकर 20,000 रुपीज़ पर किलोवाट है, ओनली पैनल। बट अदर एक्सेसरीज भी चाहिए सिस्टम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है आपका कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हर, चाहे आप सोसाइटी में रहे या कहीं में रहे, छत तो होती है ना सबकी, कॉमन रूफ तो होती है ना, कॉमन रूफ टॉप। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वहां पर इंस्टॉल हो सकता है।
अगर कॉमन रूफटॉप पर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा किसी वजह से, अगर आपकी जो एग्रीमेंट है अपने बिल्डर से ऐसा नहीं है, देन इट कैन बी माउंटेड ऑन द वॉल ऑल्सो, बट द वॉल शुड बी, जो सबसे ज्यादा रेडिएशन पड़ता है हमारे यहाँ इंडिया में, वो पड़ता है साउथ फेसिंग पर। तो कोशिश करें आप उस वॉल पर लगवाएं जो साउथ फेसिंग हो। अच्छा, ठीक है ना? तो वहां पर भी लगवा सकते हैं, छत पर अपार्टमेंट की, क्योंकि छत तो सबकी होती है। तो और अगर छत पे कोई नहीं लगाने दे रहा है, देन यू कैन इंस्टॉल इट ऑन दी वॉल ऑफ योर अपार्टमेंट और फ्लैट, बट यू हैव टू टेक केयर दैट जो मैक्सिमम रेडिएशन पड़ता है, जैसे सन निकलता है हमारे यहाँ ईस्ट से, तो मॉर्निंग में तो ईस्ट फेसिंग पर आ जाएगा सनलाइट, और फिर चला जाता है वेस्ट में, तो इवनिंग में जो है वो वहां पर रोशनी यानी सोलर रेडिएशन आएगी जो वेस्ट फेसिंग दीवार है। लेकिन सन जो है वो साउथ होते हुए आता है, ठीक है ना? तो ज्यादातर दिन में साउथ फेसिंग जो एरिया होगा वहां पर रेडिएशन आता है। तो अगर वॉल माउंटेड पर लगवा रहे हैं तो इसका ध्यान रखना होगा कि साउथ फेसिंग पर लगवाएं, और छत पर भी लगवा रहे हैं तो साउथ फेसिंग पर ही लगवाना होता है, यानी उसका जो डायरेक्शन हो साउथ फेसिंग हो छत पर भी। ऐसा नहीं कि आप उसको किधर भी कर देंगे, उसका डायरेक्शन किधर की तरफ भी हो जाएगा। किधर की तरफ भी करने से रेडिएशन कम फॉल होगा, पावर कम जनरेट होगी, यूनिट कम जनरेट होंगे। साउथ फेस में रहने से सर ईस्ट में रहे कि नॉर्थ में या वेस्ट में रहे, हर एक स्थिति में सनरे वहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसी वजह से साउथ फेसिंग लेते हैं। Anything else that you would like to ask? अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन ये है कि जो पावर हमने जनरेट करके ग्रिड को दे दी, फिर ये कौन यूज करता है? जो पावर हमने ग्रिड को दी है, फॉर एग्जांपल हमने पावर अलीगढ़ में ग्रिड को दी, तो और एक बंदा वो हमारा कोलकाता में बैठा है, तो पावर उस तक हमारी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? क्वेश्चन इज दिस, बताइए। हमने जो सोलर लगाया अपनी छत पर, और हमने कुछ यूनिट जनरेट कर लिए, कुछ यूनिट हमने ग्रिड को दे दिए, फीड कर दिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट को। तो वो पावर जो यूनिट हमने दिए हैं वो कोलकाता वाले ने सवाल पूछा है, तो कोलकाता तक पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे? दी बिग क्वेश्चन। पहुंच जाएंगे सर, उपभोक्ता को अगर ग्रिड कनेक्टेड है पहुंच जाएंगे, अगर जुड़ा हुआ तो पहुंच जाएगा सर। अलीगढ़ से यूपी से लेके कलकत्ता तक कैसे पहुंचेंगे? क्या सर? कैसे? सवाल तो ये है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन ये है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करी सोलर से, ग्रिड को फीड की यहाँ पर, वो फीड करके जो ये हमारे पास तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, देहरादून से भी हैं, कलकत्ता से भी हैं, और मेघालय से भी है शायद, जहां से भी है, तो इन लोगों तक पहुंच पाएगी हमारे यूनिट के नहीं? नेशनल ग्रिड का कांसेप्ट है, अगर ऐसा है पहुंच जाएगी सर। कैसे पहुंचना तो चाहिए सर, पहुंचना तो चाहिए, पहुंचेगी कैसे? सर आपस में सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ना सर, तो फिर इन्हीं तक कैसे पहुंचेगी वो? हो सकता है आप तक पहुंच जाए, कलकत्ता वाले सर पता नहीं कैसे पहुंची, मतलब बॉम्बे वाले तक पहुंच जाए, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है यहाँ से यूपी से चले तो आप बता दो सर। हो सकता है यूपी से चले तो क्या बिहार में अटक जाए, पहले बिहार वाला खरीद ले उसको, जो भी ये बाउंड्री लगी हुई है यहाँ पे हमारी। इस सवाल का जवाब आप ही दे पाएंगे सर। भाई कलकत्ता जाएगी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सर आप ही बता दीजिए प्लीज। सर नहीं मालूम है, आप ही बता दीजिए। सर नहीं मालूम है हमको, आप बता दीजिए। उसके बदले में वहाँ देगा ना सर कुछ वो? क्या हुआ?
मान लीजिए अगर हम यहाँ से भेज यूपी से हम जनरेट कर रहे हैं, बिहार में अटक जा रहा है, तो बिहार से फिर वो किसी न किसी माध्यम से वहां पहुंचेगा ना सर? अरे वो सारी पहले ही कंज्यूम कर लेगा, उसके यहाँ जो इतनी पावर शेडिंग होती है बिहार में, बस सोचेगा पहले यहीं पर सारा यूटिलाइज कर लो, कलकत्ता को तो बाद में देंगे। सर अब कुछ तो इतने यूनिट जनरेट हो ही नहीं तो भाई बिहार खुद इतना बड़ा स्टेट है, यूपी के तकरीबन थोड़ी सी कम आबादी है, तो एक बंदा जो यूनिट जनरेट कर रहे हैं वो सारे यूनिट बिहार में कंज्यूम हो जाएंगे, 10 लाख तक पहुंचेंगे। होती होगी ना सर, कुछ तो कंडीशन होती होगी। ऐसा थोड़ी है कि आप जो है टोटल जो है एज्यूम कर ले पावर को और अपने पास ही रख ले, कुछ ना कुछ तो कंडीशंस होगी सर। पावर तो हर आदमी अपने पास ही रखना चाहता है, कोई पावर छोड़ना नहीं चाहता जो पावर में आ जाता है। मैक्सिमम पावर लेने के बाद उस पे इफेक्ट भी तो पड़ सकता है सर। नहीं ऐसा होता है, लेट मी मेक इट क्लियर, जैसे मार्केट में हर चीज बिकती है ना, ठीक है ना, मार्केट में जैसे हर चीज बिकती है, जैसे मैंगो होते हैं, मैंगो पैदा तो इंडिया में हो रहे हैं और बिक रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह बिक रहा। अरे बताओ। जी सर। जी सर, बिक रहे हैं। सब चीज एक ही जगह पैदा नहीं होती है, ड्राई फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं कश्मीर में और बिक रहे हैं पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में। मैंगो पैदा हो रहा है इंडिया में। सर अदर स्टेट परचेस करना पड़ता सर, हमारा पावर जो जहाँ जनरेट होता है वो अदर स्टेट परचेस करना यहाँ से। कहाँ से आता है परचेस करने, कहाँ पे जाता है परचेस करने? वो जहाँ जनरेट होता है सर उनसे वो परचेस कर लेता है। एक सर ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है सर कि मिनिमम कॉस्ट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। हम जितना मिनिमम कॉस्ट पे जहाँ पे उत्पादन अधिक होता है सर वहां से कॉस्टिंग करके जो है हमको जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट है वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि एक बार अगर सिटी में बात यह है सबसे अच्छी, एक बार आपकी जनरेट हो गई ना और आपकी लाइन कनेक्टेड है कलकत्ता से लेके अलीगढ़ तक या अलीगढ़ से लेके बॉम्बे तक, कहीं पर भी, तो फिर इसको ले जाने के लिए किसी ट्रक की जरूरत नहीं होती कि पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा या डीजल ज्यादा खर्च होगा, वो तो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाती है फिर। तो लेट मी मेक इट क्लियर, जैसे दुनिया में हर चीज पैदा कहीं होती है और वहां पर भी कंज्यूम होती है, चाहे ड्राई फ्रूट है या फ्रूट्स हैं या सब्जी है या चावल है या दाल है या गेहूं है, जो जहां पैदा हो रहा है जरूरी वो फिर पूरी दुनिया में बिकता है नहीं बिकता मार्केट में? यस सर, सब चीज बिकती है मार्केट में। जो चावल हम लोग खा रहे हैं यहाँ बैठ के अपने, हाँ यूपी में, जरूरी नहीं कि वो यूपी में ही। आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है, गेहूं जो है पहले यूपी का आजकल मध्य प्रदेश का खाने लगे लोग। तो जो कहीं पर भी चीज पैदा होती है कहीं पर बिकती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में 3 प्लेयर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट प्लेयर्स है। प्राइवेट प्लेयर में बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, रिलायंस और अडानी ग्रुप और ये और वो, और इसमें आप इंडिविजुअल भी जनरेट कर सकते हैं जैसा आप कर रहे हैं सोलर से, ठीक है ना। तो इसकी जो सेल होती है वो होती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू, IEX। वहाँ पर जो है यूनिट्स के बोली लगती है, जैसे हर चीज़ की बोली लगती है ना मार्केट में, मंडी में बोली लगती है जो चीज़ मंडी में बिकती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के भी जो पीक आवर्स होते हैं उसके अंदर एक एक यूनिट 16 रुपये 17 रुपये का बिकता है, और जो ऑफ पीक आवर होते हैं उसके अंदर 2 रुपये 3 रुपये का भी बिकता है। तो जो महंगी पावर खरीदते हैं कुछ स्टेट जिनके यहाँ पावर शेडिंग नहीं होती, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पावर शेडिंग ज़्यादा होती है, वो महंगी पावर नहीं खरीदते, मना कर देते हैं। तो पावर जनरेट हो सकता है कश्मीर में हो रही हो, बट इट कैन बी यूटिलाइज इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ऑल्सो। पावर विच इज जनरेटेड इन यूपी कैन बी यूटिलाइज इन मेघालय, इन मणिपुर, इन कैलकाटा, anywhere in the country and anywhere in the globe also if the system is interconnected। तो कुछ लोग जहाँ पर 24 घंटे बिजली आती है वो लोग महंगी पावर भी खरीदते हैं चाहे जितने की भी मिले, और जहाँ लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पर महंगी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है पीक आवर्स में, गर्मी में, वहाँ पर खरीद के नहीं, मना कर देते हैं। और अपनी भी स्टेट बेच सकता है, ज़रूरी नहीं कि अपने यहाँ जो स्टेट में
पावर जनरेट हो रही है वो अपने यहाँ यूटिलाइज, अगर महंगी बिक रही है तो स्टेट कहीं पर भी बेच सकता है किसी को भी, इसीलिए वहाँ पावर कट होता है। और जो लोग खरीदते हैं महंगी उनके यहाँ पावर कट नहीं होता। जैसे इलेक्शन से थोड़ा दिन पहले 24 घंटे आने लगती है तो फिर वो महंगी भी खरीदता है स्टेट इलेक्शन से पहले। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है कहीं पर भी तो वो फिर महंगी नहीं खरीदता, सस्ती खरीदता है, इसीलिए फिर वहाँ पावर कट होने लगते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। और ये जो खरीदी बेची जाती है थ्रू इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्पष्टता नहीं हो रही है सर। है। ये सर ये जो खरीदने का जो बोले सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये मतलब कि प्राइवेट जो संस्था है, ठीक है, तो इसका कुछ क्या लिमिटेशन भी है क्या सर? नहीं, आप कितनी भी जनरेट कर सकते हैं, आप भी जनरेट कर सकते हैं एज ए प्राइवेट प्लेयर। सोलर सिस्टम लगा के घर पर, ठीक है, मैंने सोलर से जो है मैंने जनरेट किया, ठीक है, मेरे पास जो है कंज्यूम मैंने किया, ठीक है, अगर मैं उसको सेल करना चाहूँ तो सबसे बेटर ऑप्शन किसके पास रहेगा, किसको देना के लिए बेटर होगा, प्राइवेट को दूं या स्टेट? आप तो ग्रिड को ही दे सकते हैं, स्टेट को। ग्रिड को ही दे सकते हैं, स्टेट को ही दे सकते हैं ना सर। ऐसा नहीं कि सेंसेक्स के अनुसार इसका दाम रेट आगे पीछे फ्लक्चुएट करे तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएं, ऐसी भी कुछ कंडीशन आप दे सकते हो उसको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बेचता है फिर। अच्छा, वो एक बात है, स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बेचती है, स्टेट बेचती है, और जो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो लोग बेचते हैं। अच्छा, वो है कंडीशन। जो पॉलिसी है वो सोलर वाली तो सिर्फ आप स्टेट को ही बेच सकते हैं, सोलर वाली। सर इसमें प्राइवेट कंपनी का मोनोपोली तो नहीं रहता होगा, सेंट्रल तो इसके ऊपर एक फिक्स करता होगा कि इससे आप ज्यादा रेट नहीं ले सकते हैं। नहीं, उसमें महंगा बिकता है यूनिट, उसमें जो पीक आवर्स होते हैं, लेकिन महंगे का भी एक ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। डिमांड पर निर्भर करता है। हाँ, डिपेंड्स अपॉन डिमांड। मैक्सिमम कंज्यूम। ओके। यस सर। यस। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो ये पीपीटी है, इसमें तो हमने जो कॉमन आपकी प्रॉब्लम्स थी वही क्वेश्चन है। हाँ बताइए सर। ये जो सोलर पैनल है ये के बाइफेशियल भी हो सकता है, मतलब दो साइड से उसका फेस हो? हाँ, हो सकता है, यही आ रहे, दीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो मेरा एक सवाल है सर, तभी बिजली सर बिहार में इतनी महंगी क्यों है सर? हैं? हमारे यहाँ तब भी बिजली सबसे ज्यादा रेट है, मतलब बिजली का रेट जो है कितना रुपए? यहाँ सर 8 रुपया यूनिट है बिहार में। 8 रुपए यूपी में भी है 7 रुपए यूनिट, 7 साढ़े 7। 2 स्लैब यहाँ तो सर पूरे इंडिया में सबसे महंगा बिजली। क्यों? वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने बिहार में सर, वो डिसाइड स्टेट, वो तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है बिजली को स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, the rate is decided by the state government only. यस सर। जब प्रोडक्शन ज्यादा है सर तो बिजली सस्ती होनी चाहिए ना सर। तो प्रोडक्शन करके बेच देते हैं ना बाहर, बताया तो अभी आपको, दूसरे स्टेट को बेच देते हैं। हमारी जनता ये हमारी जनता को नहीं मिल पाती। आप ऐसे सोचो ना, गेहूं की पैदावार सबसे, मान लो बिहार में बहुत है या फिर यूपी में बहुत है, लेकिन बहुत होने के बाद भी बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो गेहूं बेच देते हैं हम लोग। जी जी। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बेच देते हैं, लेकिन जब इलेक्शन अब बिहार में इलेक्शन आने वाला है ना, तो अब नहीं बेचेंगे ज्यादा। 125 यूनिट फ्री कर दिया है सर, घोषणा हो गया है। फिर जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर से वो 1 अगस्त सर एक बात का ख्याल रखिए कि 125 के बाद 126 पे आइएगा तो पूरे 126 का पैसा लगेगा। हाँ, कंडीशन वो तो किसी तरह से पैसा तो ले ही लेगा। नहीं, उसमें एक ऑप्शन ये है कि आप 125 करने के लिए आप अपने घर में 2 कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका कंजम्पशन 250 यूनिट का है तो आप 2 कनेक्शन ले लीजिए। उसके लिए भी सर कुछ कंडीशन डाल दिया है, ऐसा नहीं कहने तो तब उधर मैक्सिमम लोग ले लेंगे, उसके लिए भी कंडीशन है, बहुत सारे कंडीशन कभी कंप्लीटली नहीं आई है वो, लेकिन कंडीशन डाल रहा है कि 125 यूनिट के बाद आप कितना मैक्सिमम ले सकते हैं। नहीं, आप 2 कनेक्शन ले लीजिए ना एक घर में। कनेक्शन तो ले ही सकते हैं सर। हाँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन है
सर ये आपने बताया था ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स, ये कौन पर्सन लगवा सकता है और किस एरिया में ज्यादा सुटेबल होगा? कोई भी लगवा सकता है इसको। ऑन ग्रिड पर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है और ऑफ ग्रिड पर सब्सिडी नहीं है। कोई क्राइटेरिया है एरिया का? नहीं, कोई भी लगवा सकता है, कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं। अर्बन या रूरल? सब एवरीवन। सर एक क्राइटेरिया है इसके अंदर, क्या है? लाइट कट ऑफ का। क्या है? लाइट कट ऑफ। जिस समझा एरिया नहीं। के अंदर अगर लाइट कट ऑफ ज्यादा है तो उस एरिया के अंदर ज्यादा सुटेबल होगा ऑफ ग्रिड सिस्टम। नहीं, वो क्राइटेरिया वो इसलिए है, मैं बताऊं, वो गवर्नमेंट से कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है, वो तो एक जनरल रूल है। जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होता है वो आपका, उसका जो इन्वर्टर होता है ना, वो इन्वर्टर वहीं से स्टार्ट होता है जब ग्रिड की पावर आती है, तो वो यूनिट जब भी जनरेट करेगा जब ग्रिड की पावर आएगी, ठीक है ना। लेकिन जिस एरिया में ज्यादा लाइट जाती है तो वहाँ पे तो इन्वर्टर से ऑन ही नहीं होगा, तो सोलर का सिस्टम आपकी छत पे लगा हुआ है लेकिन वो पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, तो उस एरिया में ऑफ ग्रिड लगवाना है, वो एक अलग चीज है। ठीक है। हेलो जी नमस्ते सर। जी नमस्ते, सर बताइए। ये पूछ रहा था कि बैटरी, सर बैटरी लाइफ कितनी होती है इसकी? काहे की? ये सोलर पैनल के सोलर की कोई बैटरी तो बाहर से अलग से खरीदनी पड़ती है, जिस कंपनी की खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिथियम आयन अभी जो नॉर्मली यूज होती है वो लेड एसिड बैटरी यूज होती थी इन्वर्टर बैटरी के साथ, उसकी लाइफ डिपेंड करती है बैटरी की नंबर ऑफ साइकिल्स पर, कि कितनी बार जो है वो चार्ज और रिचार्ज हो रही है वो, ठीक है ना। तो हर बैटरी की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है चार्जिंग और रिचार्जिंग साइकिल पर। तो जो लिथियम आयन बैटरी आ रही है सोलर के साथ, उसमें जो है जो नंबर ऑफ साइकिल्स उसकी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ जितनी कट ऑफ होती है लाइट उस हिसाब से वो 5 साल तक चल सकती है तकरीबन। सर ये सोलर सिस्टम में कहीं बैटरी का भी इनपुट है क्या, कि सोलर सिस्टम डायरेक्ट? क्या हुआ? बैटरी का भी सर इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट है? बैटरी का ऑफ ग्रिड सिस्टम में है, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है वहाँ आप बैटरी लगवा लीजिए, तो रात में दिन में डायरेक्ट ही चलेगा, और रात में दिन में स्टोर करेगा बैटरी में, और रात में फिर जो है वो बैटरी से चलेगा। तो ये जो सिस्टम जो आपने बताया, ये जो 3 KB वाला 1.5 लाख में, ये इसमें ये कौन सा है? इसमें बैटरी है या ये डायरेक्ट ग्रिड से है? विदाउट बैटरी है ये। थैंक यू सर। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है भाई, तो लेट अस फिनिश इट ऑफ हियर, and any questions regarding to this installation of solar photovoltaic system at the rooftop, grid connected or off grid, you can always ask by writing a email or on WhatsApp, and I would be happy to reply to your questions. Okay? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, friends. Thank you, sir. I am here now. We can, if our resource person has completed his presentation, still we have half an hour's time. We have to engage ourselves. What we can do is, you can ask about general questions about this course, and I am trying to, ask some of the good speakers just a few minutes before.
I had a call. I had given a message to a old friend. He will be speaking on media, because so far we were not having a single session on media. The role of media in, in the society. Independent media, neutral media. That is not Godi media. One resource person has agreed to speak. He was, an eminent scholar. Just last year he retired from the university service. One person has agreed to speak on gender justice. Some of you had asked me to, indicate the schedule of lectures. Maybe after 10:30, when the next resource person joins from Kashmir, I will put, at least for the next 4 or 5 days, the titles and the resource persons of our schedule. I am sorry, our today's resource person has completed half an hour before. We are supposed to be in the class for the whole period. Neither you should come late to the class, nor you should leave the class early. If it is in the physical mode, disturbance starts. Especially, people come out and they will start talking. If there is another course simultaneously going on the campus nearby, so there will be disturbance to that second course. That is why we advise our resource persons, because this Dr. Shiraz Kirmani was asked to deliver lecture by the director Faiza Abbasi. My speakers whom I select, I instruct them to, you have in fact seen that we not only stick to time, we exceed time. हम सिर्फ टाइम को स्टिक नहीं करते हैं, बल्कि टाइम से ज्यादा आगे भी चले जाते हैं. जो 15 मिनट बचा हुआ है उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं. So that should be the spirit, because you have to learn, you have to discuss, you have to agree, you have to disagree, you have to think, you have to rethink, revisit, reimagine. That is how the knowledge grows. Friends, I will throw open this session. You can ask anything. I have been trying to contact some good experts who can engage with you. Last night, a friend of mine, he is professor of Hindi in Aligarh University. Presently, he is in Sydney, Australia. He has agreed to address you people. He will be speaking from Australia. Only one resource person speaking from outside India. So he has agreed, but we both have not decided the exact timing, and probably will take the first session, because there is a difference of timing, in Australia and India. More than 5 hours. 5 hours difference is there. The first session is okay for him. So he will be speaking on some linguistic problems. He is a good speaker. He can speak in Hindi. He can speak in English. We will be requesting him also to grace this course. Friends, we have 25 minutes. We can today give 15 minutes break for tea break, but let's engage these 25 minutes. You can ask questions on anything. Sir, one suggestion is there. This is Mohammad Abu Shahid. You can also give suggestions. You can also give suggestions how to make this course more engaging and more fruitful. Mohammad Abu Shahid. Yes, sir. Topic I will suggest the gender. Another is one at a time. जब एक बोल रहे हो तो दूसरे म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो. सर मेरा सजेशन है कि ह्यूमन राइट इन डिजिटल एनवायरनमेंट
एक टॉपिक होना चाहिए, एक और जेंडर जस्टिस पे। नहीं, जेंडर जस्टिस पे ऑलरेडी एक है। ये जो लेडी, हम भी उनको कभी मिले नहीं है। शी हैज डन PhD फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। शी इज एसोसिएट प्रोफेसर इन सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज न्यू दिल्ली। तो ये जेंडर जस्टिस का टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और आप जो सजेस्ट कर रहे हैं डिजिटल इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड इन डिजिटल इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट इन डिजिटल इन्वायरमेंट। I will think about it. If I don't get any good speaker, I can myself speak on this theme. Okay, thank you, sir. Human rights is my specialization. You know, how do you interpret digital environment? Digital environment, how it impacts human rights. This may involve right to privacy. This may involve surveillance, like you know, Pegasus, which was used by the government to tap telephone conversations or mobile conversations of opposition leaders, opposition political party leaders, or their own ministers. The Modi government was doing spying on their own ministers. You know, these kind of serious issues have been raised during the last 6-7 years. That is the misuse of digital gadgets to invade the privacy, to know the strategies of opposition, which is not good for healthy democracy. You have to allow for dissent. You have to allow for opposition. If opposition is not there, if you know, as your research papers are peer reviewed, some of the peer reviewers reject your article, suggest amendments. They are anonymous reviewers. They do not know the name of the author. That subjectivity, likes and dislikes, is ruled out. It is impartial, it is neutral. Neither the reviewer knows the author, nor the author knows the reviewer. That is to regulate the quality publications. Similarly, we need to have regulations, either self-imposed or government imposed, on media governance. Everybody is bound to have rules and regulations. Even as the proverb says, no laws are applicable for war and love. प्यार में और जंग में कोई कानून नहीं चलता है, but that is not like that. There are laws of war. How to conduct war? Because the regulations and laws governing war for the last, say, 2000 years mandate the soldiers that they should not kill unarmed people, civilians, children, women. You can fight only with the combatants, not the non-combatants. You should not attack hospitals or centers of, public utility, like electricity, houses or airports. Airports should not be attacked. Red Cross means hospital. Red Cross, you have seen Red Cross. Hospital should not be attacked. Rules, regulations का होना बहुत जरूरी है.
for everything. So we will think about your topic, the topic which you have suggested. Any other person, friend? इसमें मैं कुछ बता दूं सर, उस एस्पेक्ट से देखा जाए, एक्सेस टू राइट टू इंटरनेट है एक पॉइंट, जिसमें जो है इंटरनेट शट डाउन किया जाता है, जिससे राइट टू एजुकेशन, राइट टू ट्रेड, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, राइट टू इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सी चीजें इफेक्ट होती हैं इससे। एक तो ये होता है। दूसरा डिजिटल डिवाइड है, जिससे आपके ह्यूमन राइट डिजिटल डिवाइड है, जिसमें बहुत से लोगों को फैसिलिटीज अवेलेबल है, डिजिटल चीजों की, इंटरनेट की अवेलेबल, कुछ लोगों को नहीं है। ये सब एस्पेक्ट है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन राइट पे। ओके, ठीक है, हम इस पे गौर करते हैं। एंड यू सी, a person who has vast knowledge and expertise in the discipline can engage for hours and hours and hours. As you know, in the United States of America and North America, in Canada, BA and MA classes are for 3 hours. 3 hours. टीचर को 3 घंटे बोलना है continuously. Because I taught there in Canada for 1 semester. The class was for 3 hours. When I took the first class for 3 hours, then students at the end of the lecture said, "Sir, there is normally a break of 10 minutes or 5 minutes between the 2 lectures, or after 1.5 hours there should be, or 1 hour, say 20 minutes, there should be a break of 10 minutes so that we can get a cup of tea." Because you see, Canada is very cold. In December, it was 19 degree minus, and we need hot coffee at that time, hot tea, and some break. So in our 90 minutes lecture, we should engage such experts who are willing to exceed their time limit. Because if you complete the lecture in 30 minutes before, problems arise. What the participants are supposed to do? Even if you have to have an open house question and answers, I am available for this, but other course coordinators are not available. I have seen last year's FIP. The coordinator was not introducing the speakers, resource persons. Note of thanks was proposed. Mr. Mazhar will tell, "Sir, you can start your lecture." You see, that's not good. Let's be professional. We have to be very professional. If you are agreed to coordinate the course, you have to give time. Giving time is very important. Time is like money. You see, people are after money these days. You deliver 1 hour, 30 minutes lecture in these courses, you get 5,000 rupees honorarium. Earlier it was 1,500. From 1,500, because that 1,500 was fixed by Manmohan Singh government. UGC fixed that amount either in 2010 or so. Last year, the amount was increased to 5,000 because the Modi government had not increased that amount. From 1,500 to 5,000. And the course coordinator for coordinating the course for the entire 1 month gets only 9,000 rupees. If the course coordinator delivers a lecture, I delivered a lecture, the first lecture was by me. No money, no honorarium. You see, I do it for my own and your own satisfaction. I don't work for money. So these kind of values are needed in the teachers. Teachers, you see, when you have reached the higher stage, if you occupied many important positions,
you will be rewarded, you will be recognized, you will be acknowledged, you will be monetarily, compensated also. But the commitment which teachers are supposed to show, though all of you are teachers, but here now you are sitting in the virtual class as students. You see, you have double role. In your classroom, you are teacher. In our classroom, you are a student. You have double identity. Similarly, each person has many identities. ये जो idea है ना, one nation, one tax, one language, one leader, one election, that is nonsense. It is a diverse nation. Look at the identity. I am a Muslim. That is one identity. I am a South Indian. That is second identity. I speak Urdu. Third identity. I speak Kannada. Fourth identity. I am a liberal Muslim. Fifth identity. You can have as many identities as you want. Uniformity, unity does not mean uniformity, as our one of the resource persons, Mr. Ravi Nair, pointed out. Autonomy does not mean separation. Rights to the states does not mean they will secede from the nationhood. You have to give due. This is a nation which is very diverse. There is not a single language. I was reading the excerpts of one book which has come just a few days before about Hindi heartland. It seems only 41% of the people in India, North India more, in total population of India, only 41% people speak Hindi or claim Hindi as their mother tongue. Even in the heartland of Hindi, many people have different kinds of languages. Bhojpuri, Maithili, Haryanavi, these are different dialects. If you are promoting one language, Hindi, which is being, made more Sanskritized, more difficult to understand, not like Bollywood, not like Hindustani. Mahatma Gandhi wanted that Hindustani should be the official language. Urdu speaking should write that Hindustani in Arabic script. Non-Muslims, Hindus should write their Hindustani in Devanagari script. Or if both are fighting, then have the Roman script. Manmohan Singh and Gyani Jail Singh, one was president, one was prime minister of India. They used to write their Punjabi in Urdu script or Arabic script or Persian script. Because earlier, even now, the Punjabis of Pakistan, they write their Punjabi with Urdu script. Before independence, Indian Sardarjis were also writing in Urdu script. That Gurumukhi, script was developed later. See, the idea is to communicate. Why have uniformity? There is no need of uniformity. Diversity should be protected, maintained, nurtured, so that everybody feels recognized, acknowledged. And the Constitution of India has acknowledged only 22 languages in 8th schedule, whereas more than 3,000 or languages are spoken in India. Many languages do not have script also.
Any other suggestion, friend, so that we can engage some resource persons to take up those topics? Sir, my suggestion was one topic can be taken like unlocking teachers' financial potential, diverse income streams for educators. ये एक मेरे हिसाब से एक टॉपिक अगर होता तो बहुत अच्छा रहता, because nowadays teachers they are also in a very financial distress. So I think so ये टॉपिक अगर होता, मेरा सिर्फ एक सजेशन है, बाकी तो जो है मतलब आप लोग डिसाइड कीजिए कि उसमें क्या सही है या क्या गलत है। नहीं, टॉपिक इज ओके, बट वी नीड एक्सपर्ट. Economists can take up this, accountancy people can take up this. Yes sir. Business management people can take up this kind of topic. So we will explore the possibilities of चार्टर अकाउंटेंट कोई हो सर तो उससे लेक्चर हो जाए. किनसे साहब? ये कोई हो चार्टर अकाउंटेंट. हाँ, those people are smart. क्योंकि ये बहुत अच्छा रहेगा प्रैक्टिकल, मेरे हिसाब से टीचर्स लोग को बहुत अच्छा लगेगा सर. सर फाइनेंस सर मेरा भी एक सजेशन है, अगर लिंग्विस्टिक पे कोई लेक्चर हो जाए तो. दो होंगे. There are two. One person from Sydney, वो इंडियन ही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के टीचर हैं. टीचर एजुकेशन के ऊपर कुछ हो जाए तो अच्छा होता. टीचर एजुकेशन सर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग जो है ना सर, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, एजुकेशन पे बहुत हो गए लेक्चर्स. हाँ एजुकेशन सर मेरा एक सजेशन है, अगर आईपीएम पे हो जाए सर एक लेक्चर. किस पर? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. सर इकोनॉमिक्स पर भी हो जाए कुछ सर. देखिए ऐसा है, आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, बट वी हैव टू ऑर्गेनाइज लेक्चर्स विद इन द 10 मॉड्यूल्स सजेस्टेड इन गुरु दक्षता. आप एक काम कीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए गुरु दक्षता यूजीसी का डॉक्यूमेंट. ये FIP प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन गुरु दक्षता सिलेबस. उस सिलेबस को अगर आप देख के सजेशन देंगे तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम एंड यू विल बी विद इन द फ्रेमवर्क. अदरवाइज वी विल बी गोइंग आउट ऑफ द फ्रेमवर्क. जो हमको करिकुलम फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसका डॉक्यूमेंट का नाम है गुरु दक्षता. आप गूगल में डालिए UGC गुरु दक्षता, वो डॉक्यूमेंट आएगा. छोटा सा है, 15-20 पेज का डॉक्यूमेंट है, गुरु दक्षता. अगर आप कहें तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ. सर एक लेक्चर क्लाइमेट चेंज पर हो जाए. अच्छी बात है, ठीक है. हम सर एक इकोनॉमिक्स पर भी सर ग्रुप में डाल दीजिए सर. मैं ग्रुप में गुरु दक्षता जो है ग्रुप में डाल देता हूँ, गुरु दक्षता डॉक्यूमेंट, ताकि आपको डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े. मेरे पास है, मेरे लैपटॉप में है. मेरे लैपटॉप में जो ई रिसोर्सेस हैं, ई बुक्स हैं, आप ये जान के सरप्राइज होंगे सर. ग्रुप में डाल दीजिए. I have something like more than 5,000 e-books in my laptop. लैपटॉप का वेट 1 किलो भी नहीं होगा. उसमें 5,000 किताबें हैं. Wherever I go with my laptop, I am going with my library. You see, आजकल दुनिया बदल गई. You have to also adapt to the changing times and circumstances. क्लाइमेट एक्शन एक साहब ने सजेस्ट किया, दैट कम्स अंडर आवर गुरु दक्षता डॉक्यूमेंट में आ जाता है. सर साइटेशन मैनेजमेंट का सिस्टम है मेनली, उसके बारे में हो जाता तो बहुत अच्छा होता. साइटेशन मैनेजमेंट सिस्टम है मेनली. सर क्लाइमेट चेंज प्रोफेसर साहब डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी. साइटेशंस के कई मैनुअल्स हैं. 2 मैनुअल्स पूरी दुनिया में ज्यादातर यूज होते हैं. एक शिकागो मैनुअल एंड द अदर वन इज हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जिसको AP भी कहते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं ऑथर डेट सिस्टम. एक होता है फुटनोट्स और एंड नोट्स. फुटनोट्स और एंड नोट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय शिकागो यूनिवर्सिटी मैनुअल. आप शिकागो यूनिवर्सिटी का मैनुअल अगर देखना चाहें, मेरे पास है, 700 पेजेस का है, the 18th edition. It's a wonderful document that we will leave, on your individual use, because everybody uses different style.
each university prescribes citation styles in a different way. Each journal prescribes different citation rules. So that is why citations, that one can have a lecture on why citations, to prevent the charges of plagiarism. Citations are needed to justify which sources you have used. Are you copying? Are you stealing ideas of others, arguments of others, and presenting them as your own? Between when you have cited 100 authors, 100 scholars, the reader has to come to the conclusion that besides those 100 scholars, what they said, what you are saying, that is your own contribution. What is your contribution? You are given 100 citations, 100 scholars you have cited, either in support of your argument or opposing their argument, their analysis, their perspective, their thinking, their elucidation. In this process of research, you will exhibit your own originality and your own contribution, your own conclusions, your own findings, your own inferences, your own summary observations, which the reader will identify. If you have cited all but you do not have your own opinions, then it is only compilation of facts, compilation of thoughts, compilation of ideas from others. What are your ideas? Also should be reflected. Friends, we have this second session today. सर मैं जो बात कर रहा था दूसरा एस्पेक्ट था, मैनुअल एक सिस्टम है जिसमें शिकागो मैनुअल एपीएल स्टाइल में अगर आप साइटेशन रखते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरे स्टाइल में। वो एक ये तो सॉफ्टवेयर है, वो गूगल में ही आपको सब कन्वर्शन अवेलेबल है, तो आजकल बड़ा आसान हो गया। पिछली बार इसी कोर्स को फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 2020-21 के आसपास में एमयू से, तो उस टाइम पे एक टीचर ने इस पे प्रेजेंटेशन दिया था। इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल टीचर। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ द टीचर? कैन यू फाइंड आउट so that we can ask that person to speak on that exact topic? What was the topic you are suggesting? 2022 का कब का बता रहे हैं आप? 2020 में जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन के बाद वाइस चांसलर साहब ने कराया था, AR किदवई साहब थे उस टाइम पे इंचार्ज, तो सारे ऑनलाइन कराया था फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम सारे टीचर के लिए। क्या टाइटल क्या था? साइटेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, मेंडले नाम है एप्लीकेशन का, ऐप का, मेंडले नहीं वो तो पता है हमको, वो पता है उसी के बारे में करा दो। नहीं हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी स्पीकर को, और फिर इफ सम स्पीकर इज अवेलेबल यू विल हैव वन लेक्चर ऑन citation management. I will not be speaking because you see a resource person is not supposed to speak. I'm sorry, the coordinator is not supposed to speak. Even if I speak, no on-rem is admissible for me. Any other idea, any other suggestion? एक जानना था कि एमफिल कोर्स जो हटाया गया है उसके ऊपर सर आपका राय जानना चाहते हैं सर, कुछ अगर बोल देते तो। क्या हटाया गया है सर? एमफिल कोर्स को जो हटाया गया है ना, उसके ऊपर आपके राय जानना चाहते हैं सर। ओके, देखिए ये जो NEP 2020 है, ये एजुकेशन के लोग इसमें कम इन्वॉल्व थे, इसमें बनाने में ब्यूरोक्रेट्स थे। कस्तूरी रंगा एक थे, और भी एक 2-3 IAS ऑफिसर्स थे। You see, IAS officers can give ideas about management, not about curriculum, not about policies. पहले की जो राधाकृष्णन कमिटी, राधाकृष्णन was a philosopher, a teacher in India, teacher in Oxford University. कोठारी कमीशन रिपोर्ट, प्रोफेसर कोठारी was a professor. तो प्रोफेसरों से पूछना चाहिए ना। तो सबसे पहले इंडिया में एमफिल इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 1971 में।
1971 में यूनिवर्सिटी बनी पूरा अमेरिकन मॉडल पे, एंड देयर वाज नो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दोज डेज। आजकल अपॉइंट किया है, क्यों किया है पता नहीं, वही जो फिलॉसफी चल रही है, वन नेशन वन काइंड ऑफ एजुकेशन। जेएनयू में ये होता था कि द कोर्स टीचर हु इज टीचिंग यू इज इवेल्युएटिंग योर पेपर। अब हमारे 99% यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता कोई और है, क्वेश्चन पेपर कोई और बनाता है, इवेल्युएट कोई और करता है। So that is the problem. He Yes, doesn't sir. know the students. हम जब पढ़ाते हैं तो हम जानते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और एमफिल एबॉलिश करने से क्या नुकसान है? मेरी नजर में 2 नुकसान है। नंबर 1, एमफिल इज ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अंडरटेकिंग ए बिगर रिसर्च, दैट इज पीएचडी। अमेरिका में आपका टॉपिक अप्रूव, जब पीएचडी का टॉपिक अप्रूव होता है तो उसके लिए 2 साल लगते हैं। यू हैव टू डू एडवांस कोर्सेज, कोर्स वर्क इज देयर। एमफिल में कोर्स वर्क होता है। हमने 2 सेमेस्टर कोर्सेज किए जेएनयू में, डिफरेंट कोर्सेज, बैकग्राउंड टू डू रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर एरिया और डिसिप्लिन। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाज अडॉप्टेड। जो अभी एनईपी 2020 में आया, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक्ट में था। किसी भी सब्जेक्ट वाला किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकता है, एमफिल कर सकता है। उसके लिए कुछ बैकग्राउंड रीडिंग, 5-6 कोर्सेज you have to do. One of them has to be research methodology also. Minimum period for MPhil was 1 year and maximum period was 3 semesters. Minimum 2 semesters. कभी-कभी 2 semesters में आपके कोर्स वर्क ही है, because you start your dissertation, MPhil dissertation in 3rd semester. I wrote in 3rd semester. I was, I think, only one research scholar in my center in JNU who completed dissertation in 6 months, 1 semester. Though the topic was very difficult because only one PhD on that topic was written in the world, that too in Columbia University. Very difficult topic. No internet at noon in those days. 40 साल पहले कोई इंटरनेट था नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे कई फ्रेंड्स जो एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिया था जेएनयू में, एमफिल करके वो डिसकंटिन्यू किया उन्होंने। पीएचडी दे कुड नॉट कंप्लीट। अगर आप पीएचडी में ड्रॉप आउट हैं तो कम से कम 1 रिसर्च डिग्री इज देयर, दैट इज एमफिल। 1998 का जो पे कमीशन था, यूजीसी का जो पे कमीशन, आई थिंक इट वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन एट द नेशनल लेवल वाज जस्टिस श्री कृष्णा। फिर कोई एक प्रोफेसर मेहरोत्रा यूजीसी के लिए फिर एक अलग कमेटी बनी। उसमें यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो those who had done MPhil were given 2 advanced increments, and those who did PhD were also given another 2 advanced increments. 1998 में suddenly मेरी तनख्वाह, when I was technically associate professor, though I became within the next 2 months I became professor also in 1998. 2 एमफिल के इंक्रीमेंट्स दिए गए, 2 पीएचडी के इंक्रीमेंट्स दिए गए। नाउ ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एबॉलिश्ड नाउ। दैट वाज एन एनकरेजमेंट टू डू एमफिल। यू बिकम वेल ट्रेन्ड फॉर डूइंग पीएचडी। अगर किसी वजह से पीएचडी नहीं कर पाए तो कम से कम 1 रिसर्च डिग्री एमफिल इज देयर विथ यू। दैट वाज द एडवांटेज। अभी जो एनईपी 2020 जो है, ये बड़ी लोग इसको प्रेज कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रेजिंग। आई एम नॉट प्रेजिंग दिस पॉलिसी एट ऑल। माय स्टेट एंड तमिलनाडु हैज रिजेक्टेड एनईपी 2020
यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 4 साल का बीए है, 4 साल का बीएससी है, 4 साल का बीकॉम है, he or she can directly register for PhD. No MA, no MPhil. देखिए, you are going to produce mediocres. बाद में एक्सपर्ट्स को भी हमें विदेश से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप जिंदल यूनिवर्सिटी का, ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर्स देखिए, आधे तो गोरे लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स टीचर्स। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर हमारे मित्र हैं, इज ए तमिलियन, राजकुमार। 1 साल में 10 लाख रुपया ट्यूशन फीस है वहां पर। 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे, अमेरिकन मॉडल, 40 लाख, मतलब ½ करोड़ रुपीस। अगर ½ करोड़ रुपीस दे के पढ़ना है तो व्हाई नॉट गो टू इंग्लैंड, व्हाई स्टडी इन सोनीपत वेयर दिस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड, हरियाणा में। अशोका यूनिवर्सिटी भी वहीं पर है, हरियाणा में। व्हाई नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाई नॉट गो टू न्यूजीलैंड, व्हाई नॉट गो टू कनाडा, यूके, यूरोप। यू गेट गुड एम्बियंस, एक नई जगह देखने को मिलेगी, गुड गवर्नेंस, क्लीन सिटीज। वो तो यहाँ तो नहीं मिलेगा ना इंडिया में। तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एमफिल के रहने से बड़े फायदे थे, एमफिल के हटने से, एमफिल के हटने के फायदे हमें नहीं बताया जा रहा है। अगर आपने एमफिल हटा दिया तो उसके फायदे भी तो बताओ। डीमोनेटाइजेशन लाने से पहले। सर आपको क्या लगता है दूसरी बार ये लौट के आएगा सर? जब पे डिसर्टेशन लिखा जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, फॉर एग्जांपल लॉ में, उसमें जो है एमफिल का दोबारा कराना एक रिपीटेशन है। और इसके लिए मुझे खुद पर्सनली सफर करना पड़ा। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में मैं था, जेएनयू के प्रोफेसर थे हमारे डीन, और उन्होंने कहा कि हम जाएंगे जेएनयू मॉडल पे, आपको करना हो पीएचडी तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और इस चक्कर में ये था कि हमने लिया था पीएचडी में एडमिशन, और उन्होंने जो है उसको कर दिया एमफिल के साथ जोड़ दिया। 2 साल एमफिल, और बोला कि आप जो है 3 साल और रुकेंगे और पीएचडी सबमिट करने में 2 साल और लगेगा, मिला के 7 साल आपका लगेगा। आप सोच लीजिए 7 साल कैसे? मिनिमम इज 2 साल एमफिल का। ना देखिए ऐसा है, 3 साल मिनिमम पीरियड फॉर सबमिशन था, जो आमतौर से जेएनयू में पॉसिबल नहीं होता, लोगों को लग ही जाते हैं ज्यादा। नो, आप चाहें तो आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, आई डोंट नो, आई गिव दिस एग्जांपल समवेयर एल्स। एक प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैं, जेएनयू में, रिटायर्ड हैं अभी। ही इज द ओनली पर्सन हु कंप्लीटेड पीएचडी इन 2 years, ओनली 2 years। पॉलिटिकल साइंस आईआर। देखिए मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया 1.5 years में, दैट इज 3 semesters, एंड नेक्स्ट 2 years, हाँ, दैट इज पॉसिबल। आप 7 साल कहाँ रहेंगे आप? 7 साल हमारे प्रोफेसर साहब ने पहले ही बोल दिया कि रूल्स में अलाउड नहीं है, 7 साल आप स्टूडेंट नहीं रह सकते हैं। जो टीचर खुद ही सुपरवाइज हमें करेगा, वही बोल रहा है कि 3 साल से ज्यादा तुम्हारा लगेगा। तो उसको बोलने दो ना, वो तो एक जनरल स्टूडेंट का टेंडेंसी देख के कह रहा है कि 3 साल आपको लगेगा। अमृत सेन ने 1 साल में पीएचडी लिख लिया, और रूल था कि 2 साल के बाद जमा करना पड़ेगा। जनरल रूल, हम जनरल स्टूडेंट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 years टू सबमिट योर पीएचडी। Sir, I have given written undertaking that I can complete my PhD within 18 months. But you are saying no, you cannot do? No, rules are 2 years. UGC, we are bound by UGC rules. UGC नहीं, Sark University does not run on the basis of UGC rules, sir. Sir, 2 academic year. I know that is an international university. Sir, 2 academic year. इस यूनिवर्सिटी में 22 महीने। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा होता है, आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ के रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मजेदार एग्जांपल। 18 month का रूल था सर वहाँ। When I was a student in England, I submitted before the last date my MPhil. I'm sorry, dissertation of masters. हम डिसर्टेशन सबमिट करके आ गए। अच्छा, वहां पर 1 पेज का टाइपिंग कराने के लिए 1 पाउंड देना पड़ता था, 1 पेज, बिकॉज वी हैड नो लैपटॉप। उस जमाने में लैपटॉप था ही नहीं, 1988 की बात मैं कह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था, तो टाइपिस्ट विल टेक 1 pound
जो 90 रुपीज है एक पेज टाइप करने के। तो मेरी एक फ्रेंड थी पाकिस्तान से, लाहौर से, तो शी